Hello students, how are you? I hope you all are fine. So welcome to Mathematics of Class 4, Chapter 6, The Junk Seller. Let's see the further topic of our chapter, students. Here what is written, but I find this easier. Easier वैसे हम कैसे find कर सकते हैं? For 10 rickshaws she will get rupees 20 multiply 10 so rupees 200. If we don't know 29s are or immediately we don't get it how to do it, so we can find for 10 rickshaws. So 20 multiply 10 करेंगे so get answer 200, right students? 20 multiply 10, that means first we are finding for 10 rickshaw, so answer will come 200, but we want answer for 9 rickshaw. हमें 9 रिक्शा का रेंट फाइंड करना है इंस्टेड ऑफ 10 रिक्शा, तो हम क्या करेंगे, ये जो 200 है दैट इज द रेंट फॉर 10 रिक्शा, बिकॉज 20 मल्टीप्लाई 10 करना बहुत ईजी होता है, राउंड ऑफ नंबर का मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी रहता है, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 एंड 00 200, सो वी गेट द आंसर इमीजिएटली, ओके। देन 200 माइनस हम क्या करेंगे, एक रिक्शा का रेंट माइनस कर देंगे 20 रुपीज़, तो हमें क्या मिलेगा 200 माइनस 20 करेंगे, वी गेट आंसर 180. दिस वे ऑल्सो वी कैन फाइंड द आंसर ऑफ 9 रिक्शोज, ओके। सो अगर आपको ऐसा है कि 29 करना हार्ड लग रहा है तो आप 10 रिक्शा का फाइंड करो और उसमें से 1 रिक्शा का जो रेंट है वो माइनस कर दो, देन यू ऑल्सो फाइंड द रिक्शाज 9 रिक्शाज रेंट, अंडरस्टूड दिस, ओके स्टूडेंट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज. The next page is page number 63. Can you see the page number 63? सबको दिखाई दे रहा है? Okay, now you see that page. If you are not able to see the page on the screen, so you can hear it also and read the line from your textbook, students. Okay? Now, in a week, how much does Kiran earn from one rickshaw? हम अभी क्या फाइंड करना है कि पूरे वीक में किरण एक रिक्शा से कितना अर्न करती होगी, अर्न करना यानी कमाना, ठीक है। तो पहले हमें पता है कि 1 रिक्शा का रेंट कितना है 1 रिक्शा का रेंट 20 रुपीज़, ओके। और हम क्या करेंगे अभी 1 वीक का फाइंड करना है, 1 वीक मीन्स व्हाट, 1 वीक हाउ मेनी डेज आर देयर 7, तो हमें 7 डेज का फाइंड करना है, तो क्या करेंगे 20 मल्टीप्लाई 7 करेंगे, वाई वी डू मल्टीप्लीकेशन, बिकॉज 1 डे रेंट इज 20 रुपीज़, सो वी वांट टू नो द वीक रेंट, ओके, वीक इन 7 डेज का रेंट जाना है, सो 20 मल्टीप्लाई 7 करेंगे, so 2 7s are 14 and then 1 0, so what answer will come, rupees 140, that means 1 rickshaw's rent is rupees 140, okay, for 1 week. Are you getting? Okay, now next one is page number 63. Do it mentally and write the answers. Here the multiplications are given. Can you see the sign of multiplication? That means do the multiplication and give the answer. But here this multiplication has to be done by orally. हमें कैसे करना है, orally करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको हम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना वर्टिकली अरेंज करके, वैसे नहीं करना है, orally करना है. So every time it is not possible कि we arrange the number in the paper and we are having the pen and pencil and then we solve. It's not necessary. Whenever we are going outside and we are going to buy something, so that time we have to do the multiplication in our mind, right? So orally करना कहते हैं उसे. So here that time you have to use your mind and do the multiplication. So how can you do it? That I am going to explain this. Now first 2 multiply 6, that means 2 6 are, everyone knows the table of 2, so 2 6 are कितना होगा 12, okay, so 2 6 are 12, understood that everybody knows the table of 2. Now next one is 20 multiply 6, so can you see this, the numbers are same 2 and 6 here, but here only given 20, so how can you find the answer? It's very easy, देखो 2 6 are 12, that I already know that, so हमने 12 लिख दिया. Now how many zeros in both the numbers? Only 1 zeros, okay, so you have to just put after it, so answer will come 26 are 120, right students? It's very easy students. Are you getting this? तो यहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको मल्टीप्लिकेशन 20 का टेबल आना ही चाहिए. Whenever you are having the multiplication with zeros, so you can find the answers directly also, right students? समझ में आ गया? अगर यहाँ पे एक के पीछे और एक जीरो होता तो हम वो भी लगा देते तो we get the answers. सो इन शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन में क्या रखना है, नंबर्स का मल्टीप्लाई करो और दोनों नंबर के पीछे जितने जीरो देन यू हैव टू पुट आफ्टर इट, ओके। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, 2 मल्टीप्लाई 60 करना है. The same numbers are here 2 and 6, but the zeros after 6, right? So 2 multiply 60 है. So anyone will say this answer? So next one is 2 multiply 60. So numbers are same 2 and 6. So you know the table 2 6 are होता है 12. Okay. How many zeros after the number? Only 1. So that we will put it.
So 2 60s are also answer will come 120. 26 are also answer will come 120. Understood this? It's very easy multiplication when you write the 0. Okay. Now next one. 3 multiply 42. Okay, 3 multiply 42, how can you do it? You will say, madam, here no zeros, how can I do it? How can I do orally? हम इसको ओरली कैसे कर सकते हैं? ऐसा बोलोगे ना, 3 मल्टीप्लाई 42, कहीं पे भी ज़ीरो है नहीं है, तो क्या करना है? अगर आपको 42 का टेबल भी नहीं आता है तो आप क्या करोगे? ऐसे अरेंज करोगे, 42 मल्टीप्लाई 3, हम ऐसे कर सकते हैं ना, जैसे जनरली हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं. बट सपोज वी डोंट हैव टू डू एनी पेपर और पेंसिल. ओके, आपको अभी यहाँ पे बोला है ओरली करना है. अगर ओरली नहीं भी करना होता, पर अगर आप कहीं बाहर हो और आपको 42 मल्टीप्लाई 3 करना है और आपके पास पेन पेपर पेंसिल कुछ नहीं है, तो कैसे करोगे? हाउ कैन यू डू इट? सो आई विल शो यू. हम ऐसे भी कर ही सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ डाउट, बट हाउ कैन यू डू इट ओरली? सो हियर 42 है ना, ये 42 को हम स्प्लिट कर लेंगे 40 प्लस 2 में. क्यों स्प्लिट किया नंबर को? अगर ज़ीरो वाला नंबर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में तो हमारा आंसर और ईजी हो जाएगा. मैंने 40 प्लस 2 करेंगे, देन ऑल्सो विल 42 विल कम. सो अब क्या करना है? 3 को 40 के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, देन 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको प्लस कर देंगे. सो वी गेट द आंसर फॉर 3 मल्टीप्लाई 42. दिस प्रोसेस हैज़ टू डू इन योर माइंड, बट जब भी आपको मैं लिख के दिखा रही हूँ मैंने आपको वो माइंड में कैलकुलेट करना है. देखो कैसे करोगे, यहाँ पे देखो मैं दिखा रही हूँ. 3 मल्टीप्लाई 40 करेंगे, दैन 3 मल्टीप्लाई 2. ये बहुत ईजी है ना, मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाएगा. देखो 3 4 जा कितना होता है? 112 और एक ज़ीरो लगा देंगे तो 120. आर यू गेटिंग दिस? ओके. देन 3 2 जा कितना होता है? 6. सो आंसर क्या आया? 120 एंड 6. अब इन दोनों का क्या करना है? प्लस करना है. क्यों प्लस करना है? बिकॉज हमें 40 प्लस 2 मिलकर 42 हो रहा है ना, वैसे इन दोनों का आंसर मिलकर आपको 42 का आंसर मिलेगा. सो 6 2 1. आंसर क्या आ गया? 126. यानी 3 मल्टीप्लाई 42 करेंगे, वी गेट द आंसर 126. एवरीवन राइट इन योर टेक्स्ट बुक 126. आर यू अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट? सबको समझ में आ रहा है मैंने कैसे किया? तो जब भी आपके पास अगर ज़ीरो वाला नंबर नहीं है, सो यू हैव टू जस्ट स्प्लिट द नंबर एंड डू इट. ओके. अब नेक्स्ट जो है वो ये 4 मल्टीप्लाई 80. 4 multiply 80 means here also do you know the table of 80? No, but do you know the table of 4? Yes. सबको पता है कि 4 8 जार आपको आता है. 4 8 जार क्या होता है? 32. Okay, 4 8 जार 32. How many zeros here? 1 that I will put after it. So answer is 320. And if 4 80s are answer will come 320. So everyone write in your blank 320. Clear this? Okay, next one. Are you writing the answers on blank? Everyone has to write, right? 4 multiply 81. अब हमें यहाँ पे 80 था, अब 81 है, बट 81 टेबल ऑल्सो आई डोंट नो. सो हाउ कैन यू डू इट? तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे? सी आई एम शोइंग हियर. 80 है ना, तो 80 को भी हम ज़ीरो वाले नंबर से स्प्लिट कर लेंगे. जो भी ज़ीरो नंबर हो ना वो ले लो, सो दैट यू कैन गेट इट मोर क्लियर. ओके, सो 81 को हम करेंगे स्प्लिट तो 80 प्लस 1 आएगा. दैट मीन्स 4 को 80 से मल्टीप्लाई करना है, देन 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है. समझ में आ रहा है? सो वी गेट द आंसर इजीली. सो हम डायरेक्टली कर सकते हैं. 4 8 जार कितना होगा? 320 होता है ना. 4 मल्टीप्लाई 80 करेंगे, देन 4 मल्टीप्लाई 1 करेंगे. ठीक है. सो 4 80 जार 320, वो ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है. नाउ 4 1 जार 4. ओके, दिख रहा है आपको सबको? मैं यहाँ पे कर रही हूँ. अब इन दोनों का क्या करना है? ये जो आंसर है उसको प्लस करना है. क्यों प्लस करना है? बिकॉज 80 प्लस 1 81 होता है. द सेम वे वी हैव टू ऐड ऑल्सो आंसर. सो 4 2 एंड 3. आंसर क्या आया? 324. एंड 4 मल्टीप्लाई 81 करेंगे, आंसर विल कम 324. अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व दिस सम? ओके, सो व्हेन यू डू मोर प्रैक्टिस यू कैन गेट इट मोर आइडिया. नाउ नेक्स्ट वन, 9 मल्टीप्लाई 25. 9 मल्टीप्लाई 25 कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? सी हियर 25 है, सो 20 प्लस 5 करेंगे, उसको स्प्लिट करेंगे. यानी पहले 9 मल्टीप्लाई 20 करेंगे, देन 9 मल्टीप्लाई 5 करेंगे. ठीक है. ओके, सो कैसे करेंगे? यहाँ पे आई एम शोइंग यू. 9 दिस ऑल्सो हैज़ टू बी कैलकुलेट इन योर माइंड, बट अभी आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. ठीक है. सो 9 2 जार 18 और एक ज़ीरो है तो वो लगा देंगे 180. 9 5 जार 45. अब इन दोनों का क्या कर देना है? प्लस करना है. प्लस क्यों करना है वो समझ में आ गया ना, बिकॉज हमने 20 प्लस 5 करके 25 को स्प्लिट किया है इसलिए. अब 5
8 plus 4 2 carry over, so 225. Understood this? The answer is 225. 9 multiply 25 का आंसर आएगा 225. So understood how to do it orally students? समझ में आ रहा है? तो जब भी आपके पास पेन पेपर या पेंसिल नहीं हो, so this type of calculation has to do in your mind and then you have to get the answer, right students? Okay, then this one 31 multiply 9 has to do by own. Okay, जैसे मैंने आपको समझाया वैसे नंबर को स्प्लिट करना है, 30 प्लस 1 करना है और 9 को पहले 30 से मल्टीप्लाई करना है देन 1 से, और जो भी आंसर है उसको ऐड करके दैट यू हैव टू राइट इट हियर. दैट इज द आंसर ऑफ 31 मल्टीप्लाई 9. Okay, so this has to do by own. Next as we have seen this multiplication how to do it orally, right? orally उसको कैसे करना है वो हमने सीखा है, बट आप ऐसे अरेंज करके भी कर सकते हो, बट जरूरी नहीं कि एवरी टाइम वी आर हैविंग द पेन एंड पेपर एंड वी कैन सॉल्व लाइक दिस वे. So now you have to do the orally also, okay, that you already understand. So student, do the more practice of this kind of sums. Okay, let's see the next one. I have my own small junk shop. I buy junk from junk collectors. They go from house to house and bring junk on hand carts. I then sell it at the big shop. This is the story of Kiran. So Kiran said, मेरी छोटी सी जंक शॉप की दुकान है जिसमें मैं जंक कलेक्टर से बाय करती हूँ. जंक उसको वो जंक कलेक्टर से खरीदती है. बाय करना यानी खरीदना. दे गो फ्रॉम हाउस टू हाउस यानी जंक कलेक्टर से वो घर के पास जाते हैं और वहाँ से जंक हैंड कार्ट में कलेक्ट करके लाते हैं. देन वो जो जंक है वो बड़ी शॉप पे जाके यानी जहाँ पे होलसेलर होता है वहाँ पे जाके वो सेल करती है. अंडरस्टूड दिस? दिस ऑलरेडी आई एक्सप्लेन इन द लास्ट क्लास, राइट स्टूडेंट्स? ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. So how much to pay for this junk? That means किरण के पास जो जंक कलेक्टर्स सेल करने के लिए आते हैं तो वो उसको कैसे पे करेगी उसके बारे में ये एक्सरसाइज है. किरण हैज बॉट सम जंक फ्रॉम द जंक कलेक्टर्स. किरण क्या करती है? जंक कलेक्टर से जंक खरीदती है. बहुत यानी खरीदना, राइट? लुक एट द नेक्स्ट पेज, द रेट लिस्ट टू द सी टूडेज रेट. यानी हमें नेक्स्ट पेज पे प्राइस लिस्ट, रेट लिस्ट यानी प्राइस लिस्ट दी गई है. हेल्प किरण टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ जंक. हमें किरण को हेल्प करना है कि वो कॉस्ट ऑफ जंक का प्राइस कैसे फाइंड करना है. ठीक है, ओके. तो पहले हम रेट लिस्ट देखते हैं. एवरीवन टर्न द पेज. पेज टर्न करोगे. सी दिस इज द पेज 64, राइट? एंड कैन यू सी दिस रेट लिस्ट? RATE, रेट, LIST, रेट लिस्ट यानी प्राइस लिस्ट. जैसे हम कभी भी होटल जाते हैं या रेस्टोरेंट कहीं भी जाते हैं खाने के लिए तो वहाँ पे प्राइस लिस्ट लगाया होता है. कैसा प्राइस होता है? सपोज कि 1 टी प्राइस इज 10 रुपीज़, 1 burger price is 50 rupees, 1 pizza price is this, like this. That is the price list. According to price list, according to our choice, we are buying the food, right? The same way here, the junk seller जो होता है उसका भी price list होता है. And this has been changed day to day, okay? उसका भी price daily change होता रहता है. तो वो लोग क्या करते हैं? ऐसा प्राइस लिस्ट बना दे. क्या लिखा है? काइंड्स ऑफ जंक यानी कौन कौन से जंक का क्या प्राइस है. और यहाँ पे जो प्राइस दिया है वो 1 kg दिया है यानी 1 kg का इतना प्राइस है. आपको पता है ना कि जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होती है वो वेट पे डिपेंड करती है. अगर वेट तो ज़्यादा होता है तो वो किलोग्राम में होता है. लाइट वेट की चीज़ हम ग्राम में मेजर करते हैं, राइट स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे जो काइंड्स ऑफ जंक है वो वेस्ट पेपर है. जो वेस्ट पेपर है उसकी 1 kg की प्राइस है 4 रुपीज़. ओके, यानी अगर किरण के पास जो कोई जंक कलेक्टर सेल करने के लिए आता है तो 1 kg वेस्ट पेपर का वो कितना देगी? 4 रुपीज़ देगी. ठीक है. अगर न्यूज़पेपर पता है ना जो हमारे फ्रेश नहीं होते, जो एक आध 2 मंथ आगे के जो भी होते हैं वो न्यूज़पेपर हम साथ में उसको जंक कलेक्टर्स को दे देते हैं. तो किरण उसका कितना प्राइस देगी? 1 kg का 5 रुपीज़. ठीक है. देन आयन. आयन जो है वो वन काइंड ऑफ मेटल है. जस्ट स्टूडेंट, जस्ट 1 मिनट, यू रीड इट देन विल डिस्कस इट. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर का अगर हम 1 kg किरण खरीदती है तो वो जंक कलेक्टर्स को कितना देगी? 1 kg का 5 रुपीज़ देगी. ठीक है. नेक्स्ट वन इज आयन. IRON, आयन. आयन मीन्स व्हाट? आयन इज वन काइंड ऑफ मेटल. आयन क्या है? एक मेटल है. ठीक है, जिसका प्राइस है 12 रुपीज़. यानी अगर 1 kg आयन है तो उसका उसके रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका 1 kg का किरण उसको कितना देगी? 12 रुपीज़ देगी. BRASS, ब्रास. ब्रास इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ मेटल. ओके, तो ब्रास इज वेरी कॉस्टली. सो 1 kg अगर ब्रास है तो उसका प्राइस है 170. अगर कोई जंक कलेक्टर ब्रास की कोई भी थिंग्स लेके आता है, जरूरी नहीं कि ब्रास की कोई भी बनी हुई चीज़ें, ब्रास से जो भी मेटल से बनी हुई चीज़ें हैं,
अगर उसका 1 kg का प्राइस किरण क्या देगी 170 रुपीज़। देन प्लास्टिक, अगर प्लास्टिक की कोई भी आइटम होती है उसका 1 kg का प्राइस व्हाट किरण विल पे 10 रुपीज़। अंडरस्टूड द प्राइस लिस्ट? प्राइस लिस्ट समझ में आ गया? ओके, नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस। नाउ यू टर्न द पेज अगेन 63। लेट्स सी हियर। हाउ मच विल किरण पे फॉर 31 kg न्यूज़पेपर? यानी हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि किरण 31 kg न्यूज़पेपर के लिए कितना पे करेगी। ये जो जंक कलेक्टर्स है उनके पास न्यूज़पेपर बेचने आते हैं और उनके पास 31 kg न्यूज़पेपर है, सो किरण कितना प्राइस देगी? ऐसे ही दे देगी? नो, शी इज हैविंग अ प्राइस लिस्ट ना। यहाँ पे हमने देखा ना उसके प्राइस लिस्ट है, तो हमें यहाँ पे प्राइस लिस्ट में देखना है न्यूज़पेपर का प्राइस कितना है 1 kg का 5 रुपीज़, राइट। तो हमें 31 kg का फाइंड करना है, समझ में आ गया ना। हमें 31 kg न्यूज़पेपर का फाइंड करना है, तो प्राइस लिस्ट में हमें न्यूज़पेपर के सामने उसकी प्राइस देखनी है, दैट इज अ 5 रुपीज़। 1 kg का 5 रुपीज़ है, ठीक है। अब हम आगे यहाँ देखते हैं कितना न्यूज़पेपर की कॉस्ट फाइंड करनी है 31 kg, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 31 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, ओके। वाई वी डू 31 मल्टीप्लाई 5? बिकॉज 1 kg न्यूज़पेपर प्राइस इज 5 रुपीज़। तो हमें 31 के लिए फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आर यू नोइंग दैट ना? अगर हमारे पास वन ऑब्जेक्ट के लिए या वन थिंग के लिए प्राइस है और हमें सेम ऑब्जेक्ट का ज़्यादा हमें फाइंड करना है, सो वी हैव टू डू द मल्टीप्लीकेशंस, ओके। ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 31 kg का प्राइस मिलेगा, ठीक है। सो 5, आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, वंस और टेंस नंबर होता है, दैट यू ऑलरेडी नो इट। हमारे पास यहाँ पे जो 1 ये 5 है उसको पहले वंस के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन टेंस वाले नंबर के साथ। सो 5 वंस आर 5 एंड 5 थ्रीज आर 15। सो कितना प्राइस आया 155। So students, if you want to write, so you write this sum in the textbook only and write the answers here, rupees 155. Okay, so Kiran will pay price 155 rupees for 31 kg newspaper, यानी वो 31 kg न्यूज़पेपर के लिए 155 पे करेगी। अंडरस्टूड दिस? ओके, सो एवरीवन राइट दिस आंसर इन योर टेक्स्ट बुक फास्ट। Students, here also here we have just written and solved the sum, but without calculating. If you don't have a pen and paper, so how can you calculate in your mind? Okay, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, मैं ओरली फाइंड किया, द सेम वे हियर कैसे करेंगे। तो यहाँ पे बताया है कि पहले हम 30 kg का फाइंड करेंगे, देन 1 kg का। 30 kg का 5 रुपीज़ के हिसाब से कितना होगा 5 मल्टीप्लाई 30, सो 150। यानी समझ में आ रहा है आपको? 30 प्लस 131 होता है ना, वैसे 30 को पहले हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 3 जा 15, 115, 5 1 जा 5। जैसे हम 30 प्लस 1 होके 31 होता है, वैसे इन दोनों का भी प्लस करेंगे तो हमें टोटल प्राइस मिलेगा, सो 155। समझ में आया? सो अगर ओरली आपको कैलकुलेट करना है, सो यू हैव टू डू लाइक दिस वे। जो भी आपका नंबर है उसको राउंड ऑफ नंबर के साथ स्प्लिट करो, यानी नियरेस्ट जीरो वाला नंबर ले लो, उसको पहले जो भी प्राइस है उसके साथ मल्टीप्लाई करो, देन दूसरा जो नंबर है उसको भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करो और जो भी आंसर आए उसको ऐड कर दो। ओके, दिस प्रोसेस हैज टू डू इन योर माइंड, जिस आई एम एक्सप्लेनिंग हाउ टू डू इट। अगर पेन पेपर से करना है तो आप ऐसे इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो फॉर दैट यू मस्ट लर्न द टेबल। इफ यू डोंट नो द टेबल यू कांट सॉल्व द मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको यही नहीं आता होगा कि 5 3 कितना होगा, तो आप कैसे करोगे? समझ में ही नहीं आएगा ना आपको, आपका आंसर सॉल्व ही नहीं होगा। तो इसीलिए बेटा टेबल लर्न करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। टेबल कंपलसरी सबको लर्न होना ही चाहिए। आफ्टर लर्निंग यू मस्ट राइट ऑल्सो। लर्निंग के बाद लिखोगे तो वो ऑलवेज के लिए याद रहता है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके, सो आई होप यू हैव रिटन दिस आंसर। नाउ टर्न द नेक्स्ट पेज 64। See this 64 page, right? So here the second questions. See, what is our question first? How much will Kiran pay for 42 kg newspaper? अब किरण के पास जो जंक कलेक्टर्स आया है उसने 42 kg न्यूज़पेपर दिए, अब किरण उसको कितना पे करेगी? तो हाउ कैन यू फाइंड इट? कैन यू सी द प्राइस लिस्ट? हम यहाँ पे देखेंगे न्यूज़पेपर की प्राइस फाइंड करनी है, तो न्यूज़पेपर वाला कॉलम देखेंगे। क्या है न्यूज़पेपर की प्राइस? 5 रुपीज़। 5 रुपीज़ कितना है 1 kg। 1 kg न्यूज़पेपर अगर देते हैं तो 5 रुपीज़। तो अगर मुझे 42 kg का फाइंड करना है तो क्या करेंगे? 42 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, सो वी गेट द प्राइस ऑफ 42 kg न्यूज़पेपर। अगर 1 kg का 5 है
तो 42 kg का कितना होगा, तो 42 मल्टीप्लाई 5 करेंगे ना। इन सिंपल लैंग्वेज आई विल से दिस प्राइस ऑफ पेंसिल, वन पेंसिल का प्राइस 5 रुपीज है, राइट। अगर मुझे 42 पेंसिल का प्राइस फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगी, 42 मल्टीप्लाई 5 करूंगी ना। तो यहाँ पे जस्ट यूनिट दिया है केजी, इट्स नथिंग इज हार्ड, ओके। तो अगर 1 kg का प्राइस 5 है तो 42 kg का कितना होगा, तो हमें क्या करना है, 42 मल्टीप्लाई 5 करना है, ठीक है। अंडरस्टूड कैसे करना है, आर यू क्लियर, ओके। नाउ सी, मल्टीप्लाई करेंगे पहले 5 को 2 के साथ, देन 5 को 4 के साथ। एवरीवन हैज टू follow the same procedure while doing the multiplication, okay. First you multiply with the ones number and then tens number. Now 5 twos are 10, 0, 1 is carry over. Now 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 fours are 20 और जो भी कैरी ओवर है उसको प्लस करेंगे, so 20 plus 1 is 21. So answer come rupees 210. So 42 kg newspaper price is rupees 210. Clear this? Okay, so everyone write this answer in your textbook. So everyone understood this, 42 kg newspaper price is rupees 210. Clear? Okay, next question. Also find the cost of 22 kg of plastic. अब हमें 22 kg प्लास्टिक का कॉस्ट फाइंड करना है, यानी अगर वन, तो हमें क्या, पहले कोई भी चीज का कॉस्ट फाइंड करना हो तो पहले हमें पर केजी का कॉस्ट पता होना चाहिए ना। यानी पर कोई भी, सपोज पेंसिल, पेंसिल की बात कर लो तो मुझे पहले एक पेंसिल का प्राइस पता होगा, देन आई कैन फाइंड फॉर द 22 पेंसिल ना। यहाँ पे केजी की बात हो रही है, किलोग्राम की बात हो रही है, तो अगर मुझे एक का प्राइस पता होगा तो मैं ज्यादा नंबर के लिए फाइंड कर सकती हूँ ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हियर वी हैव टू सी द प्राइस लिस्ट। तो प्लास्टिक है तो हमें प्लास्टिक वाला जंक देखना पड़ेगा, उसकी प्राइस लिस्ट क्या दी है, 10 रुपीज। एंड अगर 1 kg प्लास्टिक है तो कितना पे करेंगे, 10 रुपीज। सो 22 kg है तो कितना करेंगे, हाउ कैन यू फाइंड इट, सो लेट जस्ट 1 मिनट। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर 22 kg प्लास्टिक है अगर तो कितना होगा, तो 1 kg का 10 रुपीज है, तो 22 का कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, 22 मल्टीप्लाई 10 करेंगे। अंडरस्टूड दिस, ओके। सो इजी है ना, देखो 21, 22 वन जार 22, ओके, और एक जीरो लगा दो, 220। सो द प्राइस ऑफ 22 kg plastic is rupees 220. Students, this you don't have to write in the notebook, okay. This answer has to write in textbook only. Clear this? Okay, so answer is 220. Okay, let's see the third question. अब हम third question देखते हैं. 12 kg of iron, sorry, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर। अब हमें वेस्ट पेपर 23 kg वेस्ट पेपर का प्राइस कितना होगा। सो व्हाट टू डू स्टूडेंट्स, सो वेर इज द प्राइस लिस्ट हियर, व्हाट इज द प्राइस ऑफ वेस्ट पेपर, 1 kg का 4 है, सो 23 kg का कितना होगा, सो 23 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, सो वी गेट द प्राइस ऑफ 23 kg वेस्ट पेपर। आर यू क्लियर दिस, जिसका भी प्राइस हमें फाइंड करना हो उसका प्राइस लिस्ट देखना पड़ेगा। यस, 1 kg का 4 है तो 23 kg का कितना होगा, सो 23 मल्टीप्लाई 4 करना रहेगा। लेट्स सी हियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। सो हम क्या करेंगे, 23 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले हम वंस वाले, आपको पता है ना, अब मुझे वंस और टेंस लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट आई विल मल्टीप्लाई विद द वंस एंड देन टेंस। 4 3s are 12, 2 1 is carry over, 4 2s are 8, 8 plus 1 is 9. Okay, are you able to see this? 4 3s are 12, 2 is here, 1 carry over. So 10 multiply with the tens number, 4 2s are 8 और 1 को प्लस करेंगे तो आंसर इज 92. So the price is rupees 92. Very good, Choksi Umer, Choksi Hamza. So 92. So 23 kg waste paper price is rupees 92. You can write the answer here also. You can do the multiply here also in the textbook. Okay. Next question. 12 kg of iron. हमें आयन का प्राइस फाइंड करना है तो हमें प्राइस लिस्ट में आयन की प्राइस देखनी पड़ेगी. Where is iron? Here. What is the price of 1 kg? 1 kg आयन का प्राइस क्या है? 12 रुपीज. तो मुझे 12 रुपीज 1 kg का है, तो ऐसा कितना आयन है मेरे पास? 12 kg. तो व्हाट हैज टू डू? 12 मल्टीप्लाई 12 करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है ना? 1 kg का 12 है तो 12 kg का कितना होगा? सो 12 मल्टीप्लाई 12 करेंगे, राइट. लेट्स सी हियर, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रही हूँ. सी 12 मल्टीप्लाई 12. So first we arrange a number 12 multiply 12. So students, see, this is the 2-digit number multiplication with 2 digit.
ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि कैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप वंस और टेंस आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ. यू डोंट हैव टू राइट नाउ बिकॉज यू आर इन द 4th स्टैंडर्ड चाइल्ड. यू ऑलरेडी नोज द प्लेसेस ऑफ वंस एंड टेंस वेरी प्रॉपरली. सो हमें यहाँ पे जब 12 है तो हमने यहाँ पे क्या किया था, 23 मल्टीप्लाई 4 था, तो पहले हमने 4 ये वाला नंबर यूज किया ना, तो 4 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, देन 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, बट यहाँ पे तो कोई नंबर था ही नहीं. तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम वे, ये वाला जो 2 है ना, उसको पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. क्लियर? सो 2 2s आर 4 एंड 2 1s आर 2. हो गया? ओके. नाउ अब किसका टर्न आया, दिस नंबर का. अब ये वाले नंबर का टर्न. अब उसको 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन 1 को 1 के साथ. आर यू क्लियर दिस? बट ये नंबर कौन से प्लेस पे है, 10th प्लेस पे. तो जब भी हम 10th प्लेस का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो सेकेंड स्टेप होता है उसमें पहले जीरो लगानी पड़ती है. अगर आपने जीरो नहीं लगाया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है. ओके. सो नाउ जीरो लगा दिया, उसके बाद सेम वे मल्टीप्लिकेशन, 1 2s आर 2 एंड 1 1s आर 1. ओके, डन दिस. ओके, तो अब इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं. यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो जीरो लगा देते हैं. 4 plus 0 4, 2 plus 2 4, 0 plus 1 1. So answer is 144. So what is the price of 12 kg? Rupees 144. If you want to do the sums, you can do in your textbook. Okay, textbook में आप कहीं पे भी लिख सकते हो तो आपको समझ में आए. Clear this? Okay, so आपको यहाँ पे आंसर अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो rupees 144. Are you clear how to do it sums? Okay students?